Hello students, now that you have reached to college section, so you will have to prepare the play Tempest. I would prefer all of you all to buy Atkinson, which is revised by Sumit Mitra, and this book, like Merchant of Venice, continued from 9 to 10 standard. This book will also continue from 11 to 12 standard. The play is interesting and it is your good luck that the play is easier than Merchant of Venice. Once you will understand the storyline, the characters, you are already familiar with Shakespearean language, so things will become very easy for you to understand. Now coming on to the characters, which is given on page number 57 of the old edition. Alonso is the only king in the play and he is king of Naples. Okay, Alonso is king of Naples. Ferdinand is Alonso's son. He is king's son and he is prince of Naples. Sebastian is brother to Alonso. Sebastian is brother of Alonso, Ferdinand's uncle. Prospero is the true Duke of Milan. When the story begins, you will find that Prospero is living in a deserted island because he was overthrown by his real brother Antonio. But as a reader, you should know that Prospero is the rightful Duke of Milan. Antonio is Prospero's brother and he is the major villain in this whole play. Antonio is the major villain and along with Antonio, Sebastian is also a villain. So Antonio is brother of Prospero and usurping Duke of Milan. The Duke of Milan who has cheated his own brother and has taken his dukedom. Gonzalo is an honest old counselor. He is a wise, honest lord of King Alonso. क्योंकि प्ले में एक ही किंग है तो गोंजेलो किसका काउंसलर हो गया? अलोंजो का. एड्रियन फ्रांसिस्को, ये दोनों माइनर कैरेक्टर्स हैं. बोथ आर लॉर्ड्स एंड बोथ वर ऑन द क्रू व्हेन द शिपरेक हैज टेकन प्लेस. जब टेम्पेस्ट आया, जब तूफान आया और उसमें जो शिप डिस्ट्रॉय हुई, तो उसमें एड्रियन और फ्रांसिस्को भी इस क्रू के साथ हैं, यानी कि किंग की जो रॉयल पार्टी है मेंबर्स की, उसके साथ हैं. Stefano is a drunken butler. Butler is a profession in which a person is responsible for the dishes cooked for the king. तो स्टीफेनो जो है वो बटलर है और इनकी जो एक बैड क्वालिटी वो ये है दैट ही इज हेविली एल्कोहलिक. ही इज अ ड्रंकन बटलर. और इन्हीं के साथ एक और लॉर्ड है ट्रिंकुलो, जो जेस्चर है. Gesture means clown. So you are familiar with this word gesture because you have already studied in Merchant of Venice. उसके अलावा कुछ और कैरेक्टर्स हैं जिनमें कुछ इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कैलिबन बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है. बट कैलिबन इज हाफ ह्यूमन एंड हाफ बीस्ट. इस बात को आप याद रखिएगा. कैलिबन इज हाफ ह्यूमन एंड हाफ बीस्ट. ही इज अ डिफॉर्म्ड स्लेव ऑफ Prospero. Miranda is daughter of Prospero. So when Prospero came to take rescue on the island, on this deserted island, enchanted island, at that point of time Miranda was only 3 years old and Ariel is a spirit. जब Prospero एक deserted island पे आया तो उसको वहाँ पे, क्योंकि human inhabitation था नहीं वहाँ पे, तो Prospero was a great sorcerer. इनकी quality एक ये है कि he is a very great magician. Another word for magician is sorcerer. तो इन्होंने island पे आकर के एरियल को अपने इन्फ्लुएंस में लिया, अपने पावर में लिया और एरियल को जो कमांड प्रॉस्पेरो देते थे वो होता था. आइरिस, सिरिस एंड जूनो, these characters are mythological characters. Iris, Sirius and Juno, they are gods and their messengers. ठीक है. and these characters you will study in Act 4 when you will be reaching to 12th standard. So there is no point of studying these characters. And then nymphs and reapers are also minor characters which you will see in Act 4. ठीक है. where the mask takes place, where the celebration of Ferdinand and Miranda's marriage takes place. Now coming on to Act 1. Act 1 is the in Act 1, Scene 1 is the only scene which has taken place on board of a ship. So you have to remember this point that the whole of the play has taken place on the island. बाकी का सारा play का जो inaction है वो island पे हुआ है, deserted enchanted island पे, जो nameless island है. लेकिन सीन 1 जो है पूरे प्ले में ये शिप पे हुआ है.
ठीक है. सो दिस इज अ शॉर्ट सीन बट वेरी इंटरेस्टिंग. नाउ द शिप इज कमिंग फ्रॉम ट्यूनिस. Tunis is a place in South Africa, and Alonso's daughter Claribel is King Alonso's daughter. She was getting married to an African black Negro king of Tunis, and after conducting that marriage, King Alonso and his followers, they were returning back to Naples. So while returning back to Naples, when they were crossing this enchanted island where Prospero was living along with his daughter, the ship has to face a very severe storm. एक बहुत ही fearful tempest उन्होंने face किया, and then they have to take rescue on the island. और इसी तरह से story जो है वो आगे चलती है. So there's a ship and there's a huge storm in the ship. Thunder and lightning is also going on. Master और boatswain की entry होती है. Master is the captain of the ship and boatswain is ship's officer. शिप ऑफिसर वो होता है जिसके अंडर में पूरा क्रू होता है, और कैप्टन ऑफ द शिप कौन होता है, जो डायरेक्शन देता है. तो जब कैप्टन ने देखा कि एक बहुत ही ह्यूज स्टॉर्म आया है, टेम्पेस्ट आया है, तो उसने बोट्समैन को बुलाया और उसको इंस्ट्रक्शन दिया. हेयर मास्टर, व्हाट चीयर, व्हाट डू यू वांट. बोट्समैन ने आते के साथ कैप्टन से पूछा कि व्हाट डू यू वांट. तो मास्टर ने बोला कि सर, स्पीक टू द मेराइनर्स. मेराइनर्स मीन्स सेलर्स. फॉल टू इट ईयरली. ईयरली मीन्स क्विकली. मतलब टॉक टू योर सेलर्स, टॉक टू योर क्रू मेंबर्स एंड सी दिस स्टॉर्म, कंट्रोल इट क्विकली, और वी रन आवरसेल्व्स अग्राउंड, और अदरवाइज द शिप विल बी ड्रोन्ड इनटू दिस शैलो वाटर. यहाँ पे ग्राउंड का मतलब जमीन वाला ग्राउंड नहीं है, लैंड वाला ग्राउंड नहीं है, बल्कि इट रिफर्स टू शैलो वाटर. इफ according to the master, if boatsmen will not pay attention to this storm, then the ship will be swallowed by the sea water. Beaster means quick. तो मास्टर की एग्जिट हो जाती है इंस्ट्रक्शन देने के बाद. नाउ कमिंग टू द कैरेक्टर ऑफ बोट्समैन, ही इज अ वेरी रूड मैन एंड ही इज ओवर कॉन्फिडेंट अबाउट हिज वर्क. थोड़ा सा टेम्पर वाला है, उसको गुस्सा भी जल्दी आता है, रूड है, और उसको अपने काम को लेकर के, अपनी ड्यूटी को लेकर के वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट भी है. हीग माई हार्ट्स चेयरली माई हार्ट्स रेयर. देन ही कॉल ऑल द मेराइनर्स. सारे मेराइनर्स को बुलाता है. जैसे ही मेराइनर्स आते हैं तो उन सबको वो उनका मोरल बूस्टअप करता है और बोलता है कि यू आर ब्रेव फेलोज एंड वर्क क्विकली, टेक इन द टॉप सेल. ठीक है, लोअर द टॉप सेल. जब भी कभी शिप जो है वो बहुत ह्यूज स्टॉर्म को फेस करती है, तो शिप को जितना अंडर वाटर रखा जाता है उतना ईजी हो जाता है उसको कंट्रोल करना. तो यही इंस्ट्रक्शन बोट्समैन ने अपने फेलोज को दिया और बोला कि लोअर द टॉप सेल, टेंट टू द मास्टर विसल्स and pay attention to the master whistle. Master कौन हो गया? Captain. So pay attention to the whistle given by the captain of the ship and do your job. Mariners इतना इंस्ट्रक्शन लेकर के दो ड्यूटी उनको बताई गई. पहली ड्यूटी ये, lower the top sail, और दूसरा क्या? To listen to the master's whistle. एग्जिट हो जाती है मेराइनर्स की. blow till thou burst thy wind. और फिर बोट्समैन को गुस्सा आ जाता है उस फियर्स स्टॉर्म के ऊपर, डेंजरस स्टॉर्म जो है, और वो बोलता है कि लेट द विंड ब्लो टू इट्स वर्स्ट. क्योंकि बिकॉज ही इज वेरी कॉन्फिडेंट, उसको लग रहा है कि वो शिप को कंट्रोल कर लेगा. इफ रूम इनफ, रूम का मतलब यहाँ पे स्पेस. इफ आई विल गेट लिटिल बिट ऑफ लैंड, अगर मुझे सफिशिएंट प्लेस मिल जाती है, आई विल बी एबल टू सेव द शिप. तो मैं शिप को सेव कर लूंगा. तो अब इसी शिप में रॉयल पार्टी भी है. रॉयल पार्टी आपको पता है किसको बोला जा रहा है? किंग अलोंजो और उनके जितने भी एसोसिएट्स हैं, उनका ब्रदर, ठीक है, एंटोनियो जो यूसर्पर है मिलान का, फर्डिनेंड किंग का सन, गोंजालो जो ऑनेस्ट लॉर्ड है किंग का, और भी ढेर सारे लॉर्ड्स हैं साथ में, सर्वेंट्स हैं साथ में. वो सारे के सारे जो है वो एक्साइटेड हो जाते हैं. वो अपने केबिन से बाहर आ जाते हैं बिकॉज दे आर अफ्रेड ऑफ स्टॉर्म. अलोंजो जो है वो बोट्समैन को बोलता है, वेयर इज द मास्टर, वेयर इज द कैप्टन ऑफ द शिप, प्ले द मैन. प्ले द मैन का मतलब आस्क द वर्कर्स ऑफ द शिप टू कंट्रोल द शिप, कि आप वर्कर्स को बुलाइए और शिप को कंट्रोल करिए. क्योंकि अलोंजो किंग है तो वो ऐसे कमांड दे रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है. लेकिन बोट्समैन बहुत रूड है, और बोट्समैन ने क्या बोला? आई प्रे नाउ कीप बिलो, इट इज माई रिक्वेस्ट, प्लीज मूव डाउन टू योर केबिन्स. एंटोनियो, वेयर इज द मास्टर बोट्समैन. तो एंटोनियो को थोड़ा गुस्सा आ जाता है कि हाउ कैन बोट्समैन स्पीक रूडली टू द किंग. तो वो बोलता है कि वेयर इज द बोट्समैन. तो बोट्समैन बोलता है, डू यू नॉट हियर हिम,
मैंने जो बोला क्या आपने नहीं सुना? यू मार अवर लेबर, लेबर को अंडरलाइन करके लिखिए आप, एफर्ट्स, और मार का मतलब स्पॉइल, यू आर स्पॉइलिंग अवर एफर्ट्स, कीप द केबिन्स, go inside your cabins, you do assist the storm, if you will interfere in my work it will be just like helping the storm. अगर आप मेरे काम में इंटरफेयर करते रहेंगे तो फिर उसका मतलब ये हो जाएगा कि आप स्टॉर्म को हेल्प कर रहे हैं. ने गुड बी पेशेंट, तो गोंजेलो बीच में आता है और थोड़ा सा काम डाउन करता है बोट्समैन को, बोलता है बी पेशेंट. व्हेन द सी इज हेंस व्हाट केयर्स दीज रोरर्स, व्हेन द सी हैज बिकम सो फ्यूरियस व्हाट इज द पॉइंट ऑफ मेकिंग सो मच ऑफ नॉइज. तो बोट्समैन ये कंप्लेन करता है कि जब सी ऑलरेडी इतनी फ्यूरियस है, जब स्टॉर्म ऑलरेडी इतना डेंजरस आया हुआ है, तो इस तरह से इंस्ट्रक्शन देने का क्या सेंस बनता है, भले ही वो किंग ही क्यों ना हो. और फिर से बोलता है टू केबिन साइलेंस ट्रबल अस नॉट, मूव इनसाइड योर रूम्स एंड डू नॉट डिस्टर्ब अस. गोंजेलो गुड येट रिमेंबर whom thou has aboard. लेकिन गोंजेलो जो है उसको लगता है कि बोट्समैन बहुत रूड है, तो वो उसको समझाता है कि एटलीस्ट यू शुड सी टू whom you are talking, किससे आप बात कर रहे हैं. यू आर टॉकिंग टू द किंग. none that I more love than myself. तो बोट्समैन और एरोगेंट हो जाता है और वो क्या बोलता है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन एवरीबडी इज फेसिंग डेथ राइट इन फ्रंट ऑफ अस, I am not going to pay attention to anyone except to myself. For at this moment I am important for myself. You are a counselor if you can command these elements to silence. You are the advisor of this crew. आप इस रॉयल पार्टी के एडवाइजर हैं, आप इनको कमांड करिए कि ये चुप हो जाएं. एंड वर्क अ पीस ऑफ द प्रेजेंट एंड लेट अस वर्क फॉर द प्रेजेंट टाइम. और हमें काम करने दें. वी विल नॉट हैंड अ रोप, मोर यूज योर अथॉरिटी. ठीक है, आगे क्या बोल रहा है कि वी आर नॉट गोइंग टू हैंडल एनी रोप इफ यू विल ऑर्डर अस. अगर आप ऑर्डर करेंगे तो हम ये कोई काम नहीं करेंगे. इफ यू कैन नॉट गिव थैंक्स, यू हैव लिव्ड सो लॉन्ग एंड मेक योरसेल्फ रेडी इन योर केबिन फॉर द मिसचांस ऑफ द आवर. और ऊपर से डरा भी रहा है बोट्समैन. गोंजेलो को क्या बोल के डरा रहा है कि इफ यू आर अनेबल टू साइलेंस द किंग एंड हिज फॉलोवर्स, अगर आप किंग को वापस केबिन में नहीं ले जा सकते, उनको नहीं समझा सकते, देन बी रेडी टू डाई. आपने ऑलरेडी बहुत, यू हैव लिव्ड सो लॉन्ग, बहुत लंबी जिंदगी जी ली है. गेट इनसाइड योर केबिन एंड वेट फॉर द डेथ. मिस चांस मीन्स बैड इंसिडेंट या फिर अप्रोचिंग डेथ. इट इज सो हैप मीन्स हैपन. सो दिस इज गोइंग टू हैपन. अगर ये स्टॉर्म कंट्रोल नहीं हुआ, वी ऑल विल डाई. चेयरली गुड हार्ट्स आउट ऑफ आवर वे आई सेड. और अपने जो मेराइनर्स हैं उनको फिर से इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आप लोग अपना काम करिए. और गोंजेलो को पुश करके बोलता है कि मूव आउट ऑफ माय वे. एग्जिट हो जाती है बोट्समैन की. तो गोंजेलो को थोड़ा सा जो है वो गुस्सा आता है, लेकिन गोंजेलो एक बात समझ जाता है कि बोट्समैन जो है वो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है अपने काम को लेकर के कि ही विल डेफिनेटली नॉट डाई ऑफ ड्रोनिंग. डूब के तो ये नहीं मरेगा. इसने पहले भी बहुत ढेर सारे स्टॉर्म्स देखे होंगे. आई हैव अ ग्रेट कंफर्ट फ्रॉम दिस फेलो. फेलो मीन्स बोट्समैन. वो बोल रहा है कि इससे बात करने के बाद मैं एक बात को लेकर के तो कंफर्टेबल हो गया हूं. मी थिंक्स ही हैथ नो ड्रोनिंग मार्क अपॉन हिम. मेरे हिसाब से दिस मैन इज नॉट गोइंग टू डाई ऑफ ड्रोनिंग, कि ये आदमी डूब के तो नहीं मरेगा. हिज कम्प्लेक्शन इज परफेक्ट गैलोस. कम्प्लेक्शन का मतलब अपियरेंस, लेकिन ये जो इसका रूड बिहेवियर है, एरोगेंट बिहेवियर है, सो दिस मैन इज सुटेबल टू बी हैंग्ड बाय द किंग. तो ये अगर इसी तरह से किंग के सामने मिसबिहेव करेगा तो गैलोज इज अ काइंड ऑफ अ टूल विच इज यूज्ड एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ पर्सन. और गैलोज आपने मर्चेंट ऑफ वेनिस में भी पढ़ा है. तो कॉम्प्लेक्शन का मतलब अपियरेंस, बिहेवियर. तो बोट्समैन जो है वो डूब के तो नहीं मरेगा क्योंकि वो अपने काम में परफेक्ट है, लेकिन जिस तरह का उसका रूड बिहेवियर है, किंग उसको जरूर हैंग्ड पनिशमेंट दे सकते हैं. स्टैंड फास्ट, गुड फेट टू हिज हैंगिंग. लेकिन गोंजेलो गॉड से प्रे क्या कर रहा है कि आई वुड लाइक टू प्रे टू गॉड दैट दिस मैन शुड हैव गुड फेट, कि ये जो बोट्समैन है इसकी गॉड डेस्टिनी बहुत अच्छी बना दे और इसको हैंगिंग वाली ही डेथ पनिशमेंट मिले. ठीक है, बिकॉज दिस मैन इज अ रोप ऑफ डेस्टिनी फॉर आवर सेल्व्स. क्योंकि ये आदमी अगर नहीं डूब के मरेगा उसका दूसरा मतलब क्या हुआ, दैट द होल ऑफ द शिप इज सेव्ड. और जब शिप सेव हो जाएगी तो हम सब भी सेव हो जाएंगे फॉर आवर ओन डथ लिटिल एडवांटेज. क्योंकि अगर हम अपने से देखें तो वी आर अनेबल टू सेव आवर लाइव्स ऑल अलोन. अकेले तो हम अपनी लाइफ नहीं बचा सकते इस टेम्पे से.
इफ ही बी नॉट बॉर्न टू बी हैंग्ड अवर केस इज मिजरेबल। लेकिन अगर इसको डेथ पनिशमेंट नहीं मिलनी है और ड्रोन होकर के इसकी डेथ होनी है, देन डेफिनेटली अवर केस इज मिजरेबल। तो फिर हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। एग्जिट हो जाती है। फिर बोट्सवैन की एंट्री होती है, क्योंकि बोट्सवैन जो है वो पूरे बोर्ड पे घूम घूम के इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। डाउन विद द टॉप मास्ट, इस बार बोट्सवैन आता है और इंस्ट्रक्शन देता है कि लोअर द टॉप मास्ट डाउन टू द कैप, यानी कि शिप को नीचे ही रखो, लोअर। ब्रिंग हर टू ट्राई द मेन कोर्स। हर यहाँ पे शिप के लिए, मेन कोर्स का मतलब सेल, जिधर डायरेक्शन है जा रहा है, तो ब्रिंग द शिप टू द मेन कोर्स। और इतना इंस्ट्रक्शन देता ही है बोट्सवैन कि तभी जो है वो लोगों में ये बात स्प्रेड हो जाती है कि तूफान आया हुआ है और शिप जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है और ह्यूज टेम्पेस्ट है। तो वो लोग जो बोट्सवैन है, जब नीचे से चीख पुकार होने लगती है तो बोट्सवैन बोलता अ कर्स अपॉन दिस हाउलिंग, मे अ कर्स फॉल अपॉन द पीपल हु आर शाउटिंग, दे आर लाउडर देन द वेदर और द ऑफिस, दे आर शाउटिंग, दे आर मोर डेंजरस देन द वेदर। तभी सेबेस्टियन, एंटोनियो और गोंजालो की एंट्री हो जाती है। अब सेबेस्टियन और एंटोनियो तो पहले ही बोट्सवैन से बहुत अपसेट हैं, क्योंकि बोट्सवैन बहुत रूड है। येट अगेन व्हाट डू यू हेयर, शैल वी गिव ओवर एंड ड्रोन, हैव यू माइंड टू सिंक। और जैसे ही बोट्सवैन आता है तो गुस्सा आ जाता है, बोट्सवैन को गुस्सा आ जाता है सेबेस्टियन पे, और वो बोलता है कि आप लोग फिर यहाँ पे आ गए, क्या चाह रहे हैं? हैव यू डिसाइडेड टू बी ड्रोन्ड, क्या आपने माइंड बना लिया है टू बी ड्रोन्ड? Sebastian, a plague on your throat, may a curse fall on your tongue, you bowling, blasphemous, incharitable dog. You are noisy, godless and unfeeling dog. Boatswain, work you then. तो बोट्सवैन बोलता है now you do your work. तो वो रोप्स सब छोड़ देता है और बोलता है now you go and control the ship. Hang कर hang you insolent noise maker, we are less afraid to be drowned. अब एंटोनियो बोलता है कि hang this dog and he is a noise maker and we are actually less afraid of dying. This man is more afraid to die. I'll warrant him for droning, though the ship were no stronger than nutshell and a leaky as an unstanched wench. Wench जो है वो untrustworthy, unstanched का मतलब untrustworthy, ठीक है, disloyal, और wench का मतलब होता है woman. Warrant का मतलब assure. I can assure you that this man will not die of droning. गोंजालो को कॉन्फिडेंस है बोट्सवैन के ऊपर। वो बोल रहा है कि भले ही ये शिप जो है वो नटशेल की तरह ब्रेक हो जाए या फिर डिसलॉयल हो जाए एक विमेन की तरह, लेकिन ये बोट्सवैन जो है वो अपनी ड्यूटी अगर करेगा, विल बी एबल टू सेव अवर लाइव्स। बोट्सवैन ले हर अ होल्ड सेट हर टू कोर्स ऑफ टू सी अगेन, ले हर ऑफ। बोट्सवैन अपनी ड्यूटी में लगा हुआ है और वो बोल रहा है कि कीप द शिप वेरी क्लोज एज पॉसिबल टू द विंड, जिधर विंड का डायरेक्शन है उधर ही सी को रखो, शिप को रखो। तभी मेराइनर्स की एंट्री होती है और वो सब बिल्कुल होपलेस हो जाते हैं, क्योंकि स्टॉर्म जो है वो पूरी तरह से शिप को डिस्ट्रॉय करने में लग जाता है। ऑल लॉस्ट टू प्रेयर्स ऑल लॉस्ट। मेराइनर्स आकर के सरेंडर कर देते हैं बोट्सवैन के सामने और बोलते हैं कि नाउ वी शुड ओनली प्रे इन ऑर्डर टू सेव अवर लाइफ, वी हैव लॉस्ट। बोट्सवैन, व्हाट मस्ट आवर माउथ्स बी कोल्ड। जब बोट्सवैन बहुत सैड हो जाता है और समझ जाता है कि अब वो अपनी ड्यूटी में फेल हो गया है, अपने साथ साथ वो इतने ढेर सारे पैसेंजर्स की लाइफ भी डेंजर में डाल चुका है, तो ही टेक्स अ बॉटल ऑफ वाइन एंड ही स्टार्ट्स ड्रिंकिंग। गोंजालो जो है वो बोलता है द किंग एंड प्रिंस एट प्रेयर्स। अपने केबिन में किंग यानी कि अलोंजो और फर्डिनेंड ये लोग प्रेयर कर रहे हैं, लेट्स असिस्ट देम, हमें भी नीचे जाना चाहिए और उनको असिस्ट करना चाहिए। सेबेस्टियन, आई एम आउट ऑफ पेशेंस। लेकिन सेबेस्टियन तो बहुत डर गया मरने से। एंटोनियो, वी आर मेयरली चीटेड ऑफ आवर लाइव्स बाय ड्रंकर्ड्स। एंटोनियो को बोट्सवैन के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है और वो बोल रहा है कि वी आर एक्चुअली चीटेड बाय दिस ड्रंकर्ड। किसको ड्रंकर्ड बोल रहा है? बोट्सवैन और उसके मेराइनर्स को, क्योंकि उन्होंने वाइन पीना स्टार्ट कर दिया है। दिस वाइड चैप्ड रास्कल, वाइड चैप्ड का मतलब ओपन माउथ, तो ये जो रूड ओपन माउथ रास्कल है इसने हमारी तो लाइफ बचाई नहीं। वुड दाउ माइटेस्ट लाइक ड्रोनिंग 10 वॉशिंग ऑफ टाइड्स, और उसको कर्स देता है और बोलता है कि आई विल प्रे टू गॉड दैट यू शुड बी ड्रोन्ड इनटू वाटर एंड योर डेड बॉडी शुड बी वॉश्ड ओवर बाय 10 टाइड्स। ठीक है, दिस ओपन माउथ रास्कल शुड बी ड्रोन्ड एंड वॉश्ड ओवर बाय द टाइड सेवरल टाइम्स। he'll be hanged yet। लेकिन गोंजालो को अभी भी लग रहा है कि बोट्सवैन डूब के नहीं मरेगा, उसको अगर कभी पनिशमेंट मिलेगी तो डेथ पनिशमेंट ही मिलेगी। दो एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर स्वेयर अगेंस्ट इट एंड गेप इट वाइल टू ग्लट हिम। ग्लट मतलब सॉलो। हालांकि
जो स्टॉर्म है वो इतना डेंजरस हो चुका है कि even the single drop of water has become so fearful and dangerous that it is going to swallow us. तभी एक confused noise आती है और नीचे से जो travelers हैं, जो passengers हैं, वो सब चिल्ला रहे हैं we split का मतलब the ship is breaking, गुड बाय, और सब एक दूसरे को फेयरवेल, गुड बाय ये सब बोलना स्टार्ट कर देते हैं, गॉड से प्रे कर देते हैं. बोट्सवैन की एग्जिट हो जाती है. एंटोनियो, लेट्स ऑल सिंक विद द किंग. एंटोनियो इतना बड़ा हिपोक्रेट और डिप्लोमैट है किंग अलोंजो का कि वो बोलता है नाउ लेट अस डाई अलोंग विद द किंग. सेबेस्टियन, लेट्स टेक लीव ऑफ हिम. और फिर सेबेस्टियन भी नीचे केबिन में जाने के लिए रेडी हो जाता है कि he should also take permission before he die. After Antonio and Sebastian they exit, the last speech of Gonzalo, he says that I give 1,000 furlongs of sea for an acre of barren ground. वो Gonzalo मरने से नहीं डर रहा है, लेकिन उसको समुद्र में डूब के मरने से डर लग रहा है. वो क्या बोल रहा है कि I just want God to give me an acre of barren ground. मुझे गॉड जो है एक एकड़ दे दे barren ground का, चाहे वो हीथ हो, फर्ज हो या किसी भी तरह की लैंड हो. फर्ज लो श्रब लैंड को बोलते हैं और हीथ जो है वो बिल्कुल जिसको बोलते हैं कि डेजर्टेड जो एरिया होता है. तो मुझे वैसी लैंड दे दे, बट आई डोंट वांट टू बी ड्रोन्ड इनटू सी वाटर. द विल्स अबव बी डन. और गॉड जो चाहेगा वही होगा. बट आई वुड फेन डाई अ ड्राई डेथ, बट आई वुड लाइक टू डाई ऑन अ लैंड रादर टू बी ड्रोन्ड इनटू वाटर. सो दिस इज द एंड ऑफ सीन 1.